Hello, very good evening, my friends. We have just, started our discussion, and I'm expecting more panelists to come. And we already have with us Ms. Swagata Basu from Doon University, and I'm also expecting Professor K.K. Goswami, uh, who is a known sociolinguist and a great friend, philosopher, and guide for us. I have especially invited him, for today's session because the topic is very interesting, and that is purity of languages. There is a possibility that uh, we may be talking either in Hindi or at times in English as well. So bear with me if somebody is very serious about purity of languages. But the reality is we are currently, facing a sort of crisis in terms of our, you know, uh, presence in global world, especially when we are talking about maintaining purity of Hindi. Uh, I would like to welcome Dr. And Professor K.K. Goswami sir, as well as Swagata Basu from Doon University for today's discussion, as well as we will have, less of a discussion and more of perhaps learning from Professor K.K. Goswami, who is a sociolinguist and an eminent scholar, created thousands of scholars in Hindi, linguistics, machine translation, lexicography, terminology management, and whatnot. But before we initiate, today's talk, I would like to, read some of, the initial comments about, today's discussion. In fact, I had kind of made a small video on this topic and spread around and tried to question, people as well as myself, whether what is the meaning of purity of Hindi? Because I got disturbed out of one email that has come to me from a very close friend of mine and a lovely person who is a language activist, and he lives in Canada, and he promotes Hindi a lot among variety of people. I also get disturbed because of the fact that many times I try to communicate about Hindi in English language or Spanish language or French or other languages that I have access to. So personally, I have access, direct access to English, Spanish, Portuguese, and French. So I try to spread Hindi in these language areas and these countries where these languages are spoken. So what happens? If there are, variety of thoughts and opinion related to promotion of Hindi, we have, government uh, who has announced Hindi as an official language. But the reality is, even after 70 plus years of independence, Hindi is always taken as a second grade language in India. And when the Indians are not respecting it, why should foreigners will respect it? And I believe it is not related to respecting. It is more to do with imposition of English by rulers. After Macaulay introduced you know, English language in 1835, and the fundamentals are when we are talking about uh, English or Hindi or purity of any other languages. In particular, about Hindi, I have many doubts,
and this is what I have presented. Somebody has given me a kind of warning message also from USA that you have no business to malign Hindi by trying to mix Hindis with other languages like Urdu, Persian, Arabic, etc. I am also being told by variety of people, that when I speak Hindi, I also speak certain English words, and my English words are too tough to be understood by common men. So that means मेरी भाषा बहुत कलिष्ठ है, इवन हिंदी में भी और अंग्रेजी में जो है सो है. तो अब ऐसी स्थिति में मैं करूं तो क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं कभी कभी इस बात को लेकर. तो मैंने सोचा कि चलो जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे राय विचार लिया जाए, और जो 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 दूसरे जो मित्र लोग हैं उनसे भी सोचा जाए कि हम क्या कर सकते हैं इस मामले में. तो सबसे पहले नाम जो मुझे याद आया, वो नाम याद आया प्रोफेसर के गोस्वामी सर का. ऑल्दो उनकी तबीयत पहले मुझे पता चला था कि ठीक नहीं थी, बट नाउ इट सीम्स ही इज कीपिंग वेल. एंड मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और स्टेबलाइज करना चाहता हूं लोगों को जो अभी हमारे व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल पे आए हैं. मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो अभी आज हमारे साथ जुड़े. प्रसाद नागपुर जी, प्रणव भारती जी, मारिया डोलोरेस स्पेन से हैं, जयंत कार शर्मा जी रजिस्ट्रार हैं, इशिता, दे आर ऑल बार्सिलोना से हैं, और बहुत सारे लोग कंकरेंटली हमें देख रहे हैं. मैं सबको हेलो करना चाहता हूं, और मेरे पैनल के तरफ से भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपना हाथ उठा के इन सबको वेव कर दें, सो दैट दे नो दैट वी आर हियर. Okay. और जो दूसरा दूसरी बात यह है कि जो कुछ कमेंट्स आए हैं मैं वो भी पढ़ूंगा. जैसे पंकज चतुर्वेदी जी ने कहा है, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है. यदि ऐसा होता तो यह महज चित्रलिपि से आगे नहीं बढ़ती. भाषा अपने आप संस्कार, संस्कृति, सभ्यता आदि को साथ लेकर चलती. सुरेश व्यास जी लिखते हैं कि आई एम कमेंटिंग हियर, ऑल्दो आई डोंट फील लाइक कमेंटिंग, बट कभी कभी इंटेंशंस होता है कि कमेंटिंग करने में हमें एक्सप्रेस करने की बात आ जाती है. मैं हिंदी में इनको, Hindus feel great about our Vedic heritage and culture and do not want to forget it, but we should happily spread dharma to interested people. Most of our dharma literature is in Sanskrit, which is very scientific. It was our enemy rulers' policy that Sanskrit was taken out of the education system. मैं मतलब इतना ज्यादा डिटेल इन्होंने लिख दिया है कि I got confused. Although he's saying that Sanskrit was forcibly thrown out of system. एंड उसी तरह से एक आध और कमेंट में पढ़ता हूँ आपके लिए जो आज के डिस्कशन का के टोन को सेट करेगा. स्नेह ठाकुर जी बोलती हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस पे ठीक से डिस्कशन होना चाहिए. उसी तरह से जो और भी लोग हैं, एक कमेंट है जो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ना. एंड वो है मैं उसको पढ़ के बताना चाहूंगा, और वो है अंजनी ओझा बोल रहे हैं. भाषा प्रवाहित नदी की तरह है जिसमें उसके प्रवाह में आने वाले मार्ग के जल मिश्रित होते रहते हैं. ठीक इसी तरह भाषा के विभिन्न वर्ग समाज से शब्द ग्रहण कर समृद्धि होती है. ये सारे बातें हैं, और हमारे साथ जो अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि अगर उनके पास कुछ कमेंट्स हैं, कोई थॉट्स हैं, तो प्लीज शेयर. और it is a bad luck that I have just received a message from Professor Kirat from Morocco that she will not be able to make it because she had some urgent meeting in the ministry and she will not be able to get free. Therefore, आज ये 3 पैनल लिस्ट ही हमारे लिए काफी हैं, एंड सब इसलिए ज्यादा नंबर्स की भी जरूरत नहीं है जब प्रोफेसर गोस्वामी इज ऑलरेडी है. तो मैं आज के इस मुद्दे पे 2-3 बात बताना चाहता हूँ. स्वागता जी आपको भी, जो कि लिंग्विस्ट हैं, स्पेनिश की जानकार हैं, दोनों यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अच्छी स्कॉलर रही हैं और स्पेन से भी पढ़ाई की है उन्होंने. तो लैंग्वेज के बारे में एटलीस्ट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनका क्लियर. और सर्टेनली प्रोफेसर गोस्वामी जी हमारे सामने हैं जिन्होंने
कम से कम 1000+ लोगों को तो स्कॉलर बनाया ही होगा। उसके अलावा हजारों लोगों को मैं बोलूंगा, उनके ज्ञान से, उनकी किताबें हैं, लिंग्विस्टिक्स की हैं, मशीन ट्रांसलेशन की हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक की हैं, टेक्नोलॉजी की हैं, लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करने में गोस्वामी सर माहिर हैं। और पहले आगरा हिंदी संस्थान के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। एंड बहुत इतना नंबर है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। मैं अगर इसको पढ़ने लगूंगा तो मैं थक जाऊंगा पढ़ते पढ़ते, इतना बड़ा बायोडाटा है। वो अपने आप में एक सेमिनार हो जाएगा इस बायोडाटा जो गोस्वामी सर का है। तो मैं इन सबको ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूँ कि जब हम बोलते हैं कि हिंदी प्योर है, तो इसी मैटर पे कल वैदिक साहब ने फोन किया था। उन्होंने बताया कि हिंदी जो शब्द है वो अपने आप में एक फॉरेन शब्द है, और इसके अंदर में जो एक और लिंग्विस्ट MC गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक मेल किया था किसी अच्छे लिंग्विस्ट हैं उनका। उन्होंने कहा कि हिंदी के अंदर अगर मान लीजिए आपको शब्द की कमी हो रही है तो आप हिंदी को एक तरीके से सीरीज में एक नए शब्द बना सकते हैं। तो हिंदी के अंदर इतना लिबर्टी देता है आपको कि आप एक नए शब्द को क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी इजी लेकिन ऐसा लिबर्टी अंग्रेजी में नहीं है। थोड़ा बहुत है अंग्रेजी में भी, बिकॉज अंग्रेजी में लैटिन से आता है बहुत कुछ, और ग्रीक वर्ड्स भी हैं कुछ कुछ, और उसी तरह से स्पेनिश में है, अरेबिक में भी है। लेकिन जितना लिबर्टी हिंदी के अंदर है नए शब्द बनाने का, उतना लिबर्टी दूसरे भाषाओं में कम देखने को मिलता है। तो उनका ये कहना है कि जब हमारे पास अपने रास्ते मौजूद हैं तो उन रास्तों को छोड़ के हम उर्दू के शब्द को क्यों लेते हैं, हम पर्शियन के शब्द को क्यों लेते हैं, हम पंजाबी के शब्दों को क्यों लेते हैं, हम और द्रविडियन लैंग्वेजेस के शब्दों को हिंदी में क्यों घुसाते हैं। अगर ऐसा करते रहेंगे तो हिंदी जो है अपनी रूप रेखा बदल के कोई दूसरा लैंग्वेज बन जाएगा। यूरोप में एक चलन चला था, वो एस्पेरांतो एक लैंग्वेज आ गया। अभी भी जिस हिसाब से यूथ लोग जो हैं इंग्लिश का जो शॉर्ट फॉर्म है जो सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, और जो बच्चे लोग हैं खास के यंगस्टर, they are very smart in creating new words and short form and abbreviation, and वो कभी कभी यूनिवर्सल भी हो जाता है लोकल होते होते। तो ऐसी स्थिति में जब हम अभी के माहौल में, अभी ग्लोबलाइज हो रखा है वर्ल्ड, गूगल फेनोमेना ने तो और भी ग्लोबलाइज कर दिया है, मशीन ट्रांसलेशन ने उसको इतना ज्यादा धक्का दिया है क्रिएटिविटी को कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब इससे पहले कि उस धक्के को हम समझ पाते, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेजन हो गया है, और फिर अब कुछ समय के बाद जो मेमोरी हमारी है वो भी पैसिव मेमोरी हो जाएगी। हो सकता है हमारे दिमाग में चिप लगा दिया जाए और हम अपना मेमोरी बूस्ट कर लें। लैंग्वेज जो है क्रैम करने का जो प्रोसेस है, एक्वायर करने का प्रोसेस है, वो एक नेचुरल प्रोसेस ना होके वो आर्टिफिशियल प्रोसेस हो जाए, और हार्ड डिस्क या चिप हमारे दिमाग में लग गया और हमारे मेमोरी बूस्ट हो गया। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी इसी तरह की, जिसमें बंदा हाथ एक लेडी का पकड़ता है और उसका पूरा मेमोरी चेंज हो जाता है। ये आमिर खान की एक मूवी थी PK। तो ऐसे ये इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी होने वाला है और ऑलरेडी हो चुका है। मैं दुबई पिछले साल गया था एक कॉन्फ्रेंस में, तो वहां मैंने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना तेजी से हमारे सिस्टम में घुस रहा है। आपके बॉडी में एक इंजेक्शन चला गया और वो चिप का काम करता है, एंड यू डोंट हैव टू कैरी योर पर्स एंड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। वो चिप ही आपका सब जगह काम हो जाता है, पासपोर्ट तक का भी वो काम करता है। तो अब ऐसी स्थिति में हम जब हिंदी की बात करते हैं तो हम इसका क्या करें बताइए। और नंबर 1, इसको हम प्योर कैसे रखें। ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इतना सारा इन्वेजन के बावजूद हम अपने आप हिंदी को प्योर करने की बात जब करते हैं तो थोड़ा सा अटपटा और अनप्रैक्टिकल लगता है। और दूसरी बात, जब हम जबरदस्ती हिंदी में प्योर हिंदी घुसाने की बात करने लगते हैं तो आप देखिएगा जो ज्यादा जो शुद्ध हिंदी बोल रहा होता है, सुनने में तो अच्छा लगता है बंदे का, लेकिन वो क्या बोलचाल की भाषा में वो पॉसिबल है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब लिखते हैं तो हिंदी थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है, जब हम बोलते हैं तो सिंप्लीफाइड हिंदी बोलते हैं। तो ये डुअलिज्म में हम क्यों रहते हैं।
तो ये सारे समस्या है, प्रॉब्लम्स है, जिस पे मैं चाहूंगा कि गोस्वामी सर कुछ बोलें। और स्वागता जी आप भी जरा ध्यान दीजिएगा कि जो जिस स्पेनिश को के कॉन्टेक्स्ट में ही हम ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हिंदी ही हो, कि प्योरिटी की जब बात होती है तो स्पेनिश में भी बहुत सारे नए नए वर्ड्स इंग्लिश में आते हैं। इनफैक्ट जो रॉयल एकेडमी ऑफ स्पेन है वो नए नए वर्ड्स को जोड़ता है। सिमिलरली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बहुत सारे हिंदी के टर्म्स एज इट इज ले लिए गए हैं। तो अब मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में हम जब प्यूरिटी की बात करते हैं किसी भी भाषा की, तो क्या ये एब्सर्ड सा नहीं लगता? मुझे लगता है कि कभी कभी कि ये तो भाई ये कुछ ज्यादा अति हो। तो इन्हीं सब बात को ध्यान में रखते हुए मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। और बिफोर आई गो टू गोस्वामी सर, मैं चाहूंगा कि स्वागता बासु दून यूनिवर्सिटी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो एक लिंग्विस्ट हैं और इस पर्टिकुलर प्योरिटी वाले बात पे उन्होंने बहुत सारे रिसर्च कर रखी हैं, तो वो अपने विचार दें। आप हिंदी में भी बोल सकती हैं और इंग्लिश में भी बोल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पैनल इज ओपन फॉर एनी ऑफ द टू लैंग्वेजेस। स्वागता जी प्लीज। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पैनल डिस्कशन में शामिल करने के लिए। मेरी मातृभाषा जो है बंगाली है। मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, तो मेरे लिए हिंदी का एक अलग स्थान है मेरे लाइफ में। घर पे हमेशा बंगाली बोली गई, हिंदी हमेशा दोस्तों से हिंदी में बात हुई। पढ़ाई लिखाई आप जानते ही है, इंडिया में एजुकेशन का लैंग्वेज इंग्लिश है। तो और आगे चल के मैंने स्पेनिश की पढ़ाई की, तो अब स्पेनिश भी ऑलमोस्ट उतना ही डियर है या उतना ही क्लोज टू हार्ट है जितना बंगाली है, हिंदी है। और उसके बाद मेरा जो पीएचडी रिसर्च है वो इसी टॉपिक में है, तो इसीलिए मुझे इस टॉपिक में इंडिया में जो चर्चा हो रही है ये इतना जरूरी है, इतना रेलेवेंट एक टॉपिक है ये, कि प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज कंजर्वेशन, लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन, इन सब पे चर्चा यूरोप में बहुत ज्यादा होती है, मुझे ऐसा लगता है। और इंडिया में अभी भी लिंग्विस्टिक्स, सोशल लिंग्विस्टिक्स, इन सब पे चर्चा कम ही होती है। एकेडमिक फील्ड में होती है, प्रोफेसर में होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो इतना भी नहीं पता होता है, जैसे कि अच्छा आप लोग विदेशी भाषा कैसे सीखते हैं, क्यों सीखते हैं, वो भी आप एज अ एक्सपर्ट ऑफ दिस एरिया यू वुड नो कि ऐसा ही है। तो लैंग्वेज के बारे में अवेयरनेस ही कम है। तो मेरा सर आपका जो भी कहना था उसमें द मेन थिंग, अभी मैं भी इंग्लिश ही यूज करूंगी, कभी इंग्लिश कभी हिंदी। तो द थिंग इज कि सर प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली ह्यूमन कंस्ट्रक्टेड आइडिया। ये बिल्कुल ही नेचुरल बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अगर हम जो रियलिटी है, जैसे कि रेस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस, कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रेस इज मोर सुपीरियर देन दैट रेस, ये सारी रेसिज्म अब हम एक्नॉलेज कर चुके हैं, तो अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई भी ये बात नहीं बोलेगा कि हाँ व्हाइट्स और ब्लैक्स आर डिफरेंट रेसेस एंड देयर इज समथिंग बायोलॉजिकली डिफरेंट अबाउट इट। वो चीज को हमने समझ लिया है, लेकिन लैंग्वेज के बारे में अभी भी वो अवेयरनेस नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज भी नेचुरल सेटिंग में आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वही है। इट्स अ कंटिन्यूअम, इट्स अ रेपर्टोयर, एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल टू अ पर्सन टू कम्युनिकेट, दे यूज इट। और इसीलिए ह्यूमन ब्रेन में कोई डिमार्केशन नहीं है। मेरे ब्रेन में अगर मुझे अब 4 भाषा या 5 भाषा आती है, तो माई ब्रेन इज प्रोसेसिंग ऑल द लैंग्वेजेस एट द सेम गो, एट द सेम टाइम। और ये जो एक प्योर लिंग्विस्ट का डिमांड है कि माई ब्रेन शुड नो वेदर आई फर्स्ट डिसाइड that are you speaking in English, are you speaking in Hindi, are you speaking in Spanish, and then not mix all of those languages. It is not natural, it is not going to come naturally.
बट ये चीज भी है सर कि जब हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, जैसे स्पेन में जब हम देखते हैं, स्पेन में कई सारी भाषाएं हैं, स्पेनिश इज दी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, बट स्पेन हैज अदर लैंग्वेजेस जिनको ओवर द टाइम, जो यूरोप में जो एक 19th सेंचुरी में लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन का एक चलन हुआ, क्यों? क्योंकि वो नेशनलिज्म से जुड़ गया। एक लैंग्वेज एक नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने लगा। तो ऐसे में जरूरी था उनके लिए उस एक लैंग्वेज को प्योर बना के उसको मेन लैंग्वेज ऑफ ऑल द पीपल, जैसे इवन फ्रांस में कई सारी लैंग्वेजेस थी, लेकिन फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक, द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। सो इट स्टार्टेड, अगर आप फ्रेंच नहीं बोलते हो तो आप वो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक यूरोप में लैंग्वेजेस स्टैंडर्डाइज हुई है। इंडिया में वो प्रोसेस हुआ नहीं है कभी भी, क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री और हमने डाइवर्सिटी को ही अपनाया है, हमने कभी वो प्योरिटी लाने की कोशिश नहीं की किसी भी फील्ड में। तो हमारा हर कल्चर, हर एस्पेक्ट, फूड हैबिट्स, every aspect is has a lot of inputs from everything, from all our history, from all the influences. So I think that when we talk about Europe, उनको अभी भी लगता है कि जो भी उनके माइनॉरिटाइज्ड लैंग्वेजेस है, मतलब जो लैंग्वेज वो पीछे छूट गए नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में, जैसे स्पेन में कातालान है, तो उस वक्त वो समझते हैं कि ये प्योरिटी और वो स्टैंडर्डाइजेशन और उनका एक रिटन ग्रामर, प्रिंटेड ग्रामर के बिना दे कैन नॉट सर्वाइव दैट in this mix of languages, in this continuum of languages, some languages get past, like get behind in the race. There's a race of languages going on. तो आप जो कह रहे हैं, आप अब अगर हम हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में सोचे तो हिंदी मुझे नहीं लगता है कि threatened language है at all. Hindi is a majority language, one of it has the potential of becoming an international language because of India's economy. It is spoken, it has a popular culture which is so strong, which has a international appeal. दुनिया भर में लोग बॉलीवुड के फिल्में और गाने सुनते हैं, तो हिंदी थ्रेटेंड लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्टैंडर्डाइजेशन और प्योरिटी का जो कोशिश है वो उन कॉन्टेक्स्ट में फिर भी शायद वैलिड है जहां पर लैंग्वेज थ्रेटेंड है, क्योंकि उसको जब तक हम एक प्योर फॉर्म और उसको एक नाम नहीं देंगे, ये नेमिंग ऑफ द लैंग्वेज इज देयर इज अ पॉलिटिक्स बिहाइंड नेमिंग ऑफ लैंग्वेजेस। तो जब तक दैट नेमिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी, एक स्टैंडर्ड ग्रामर जब तक नहीं बन पाएगा, तो शायद वीक लैंग्वेजेस जहां पर स्पीकर्स कम है वो थ्रेटेंड है और वो और ज्यादा वो लुप्त होते जाते हैं, वो भूलते जाते हैं। न्यू जनरेशन बड़े लैंग्वेजेस की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं, जो कि लैंग्वेज शिफ्ट का फिनोमिना होता जाता है। दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी रियल। बट बिल्कुल हिंदी का कॉन्टेक्स्ट अलग है और हिंदी is already a majority language of a very big country and a very big population. तो इसमें मैं आपसे सहमत हूँ कि हिंदी में हमें हिंदी के अंदर के वेरिएशंस को मुझे लगता है रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी के साथ ऐसा है कि हिंदी हम जिसको बोल रहे हैं, जिसको ऑफिशियली हिंदी माना जा रहा है, वो आपने अपने कॉल में भी यही बोला था कि उसमें मगधी भी है, उसमें ब्रजी भी है, उसमें सब सेंसस जब इंडिया में होता है तो उन सबको काउंट किया जाता है एज हिंदी स्पीकर्स। ऑल्दो मदर टंग भोजपुरी जैसे कोई अलग से सेंसस में अपीयर नहीं कर रहा है। ये 50 लैंग्वेजेस है जिनको हम हिंदी स्पीकर्स के अंदर काउंट कर ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो अगर उस डाइवर्सिटी को माना जाए तो वो ज्यादा जरूरी है। मेरा ये मानना है कि वो डाइवर्सिटी, और अगर हम हिंदी को प्योरिटाइज संस्कृताइज वाले हिंदी को ही प्रमोट करेंगे तो वो सारे लोग एक्चुअली बिल्कुल भी वो समझ ही नहीं पाएंगे उस स्टैंडर्ड हिंदी को। तो अगर हिंदी को हम एज अ लैंग्वेज फैमिली सोचे, जहाँ पर बहुत सारे
वेरिएशंस अलाउड है और हम उसको इनफैक्ट अप्रिशिएट करें या सेलिब्रेट करें उस डाइवर्सिटी को विद इन द लैंग्वेज, तो मुझे लगता है कि हाँ फिर हिंदी का ज्यादा अच्छा है। यही आपने भी कहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वही लैंग्वेजेस जैसे इवन स्पेनिश, जो 22 लैटिन अमेरिकन 21 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में अगर स्पेनिश बोली जाती है तो हर कंट्री के पास अपना एक्सेंट है, हर कंट्री के पास अपनी वोकैबुलरी है जो स्पेसिफिक टू दैट कंट्री, दैट कल्चर है। तो ऑल्दो देयर वाज अगेन रियल एकेडमिया एस्पानियोला का एक टेंडेंसी था पहले, लेकिन अब कई सारे रियल एकेडमियाज है सारे लैंग्वेजेस के, स्पेनिश के, लेकिन फिर भी वही यूरोप में, यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेस्टिंग को एक बिजनेस की तरह बना लिया है। वहां अगर हम देखें तो हिंदी वो नहीं कर रहा है, लेकिन आगे चल के इकोनॉमिक पर्पस से अगर इसकी जरूरत पड़े कि कोई इंडिया में वर्क परमिट लेके काम करना चाहे तो हम उनसे कंपलसरी हिंदी का टेस्ट करा रहे हैं बिफोर वी गिव देम द वर्क परमिट। ऐसी सिचुएशन में फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए मैं यही बोलती हूँ, अपना पॉइंट यहाँ रखती हूँ, बाकी मैं प्रोफेसर गोस्वामी जी से ज्यादा सुनना चाहूंगी। आई विल स्टॉप हियर। बहुत धन्यवाद स्वागता जी। गोस्वामी सर इज हियर ऑलरेडी। मैं एक उनके पास जाने से पहले आपने जो बातें कुछ कही हैं उसको मैं थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ समराइज कर देता हूं सो दैट जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको समझ में आए। तो आप ये कहना चाह रही हैं स्वागता जी कि जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है यूरोप में जैसे हुआ, फ्रांस में बहुत सारे सब स्टैंडर्ड और छोटे छोटे लैंग्वेजेस होंगे, या इन्फ्लुएंस होगा जर्मनी में भी बिस्मार्क के समय में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। उसी वही समय है जब नेपोलियन बोनापार्ट बहुत एग्रेसिव हो गया था। 1808 की बात है, मुझे याद आ रहा है। और 1820 में बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट किया था। और उसी पीरियड में जो नेशन बिल्डिंग का जो काम है, इंग्लैंड में भी कुछ ऐसा ही पीरियड था जब इंग्लैंड में भी डिफरेंट छोटे छोटे स्टेट्स थे और वो यूनिफिकेशन पूरा नहीं हुआ था उस समय। तो अब जो एक नेशन स्टेट जब बना, छोटे छोटे जो आई विल से चीफ लोग थे वो थोड़ा और बड़े हो गए, मैरिज अलायंस हुआ, दोस्ती हुई, बिजनेस अलायंस हुआ, यूनिफिकेशन हो गया, कोई लड़ाई करके किया, कोई शादी करके किया, कोई किसी का लूट लिया गया। वही चीज भारत में भी हो रहा था। छोटे छोटे जो राज्य राजवाड़े थे, उसी पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ जिस समय 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के बच्चे नहीं थे तो उनसे छीन लिया गया था उनका राज। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो जो चीज यूरोप में हो रहा था उसका रिफ्लेक्शन भारत में भी हुआ। एंड उसी रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए परहैप्स 1835 में मैकॉले ने अंग्रेजी इंट्रोड्यूस किया सो दैट कि वो अपने खर्चे को घटा सके। खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी से, मतलब ब्रिटिशर्स लोग अगर मान लीजिए आए यहाँ पे भारत में आते थे तो बहुत खर्च लगता था, सैलरी देना पड़ता था एक अंग्रेज को बहुत ज्यादा, और ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में चल रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे पैकेजेस मांगे सरकार से, क्राउन से, कि भाई मुझे कुछ राहत दी जाए। तो उस जब उन लोगों ने इकोनॉमाइज करना शुरू किया एक्सपेंडिचर को, तो उसी प्रोसेस में उन्होंने सोचा कि जो क्लर्कियल जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसको बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम, वो कुछ ऐसा बना दिया जाए कि जो क्लर्कियल ग्रेड के लोग हैं एटलीस्ट उनकी संख्या कम हो जाए तो भारत से ही काम चल जाएगा, भारत के ही लोगों से। क्योंकि भारत में समहाउ उन्होंने लीगल सिस्टम तो घुसा ही दिया था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी घुसा दिया था, म्युनिसिपैलिटी भी घुसा दिया था, इलेक्शंस भी होने लगे थे कुछ हद तक। ये सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे थे। और उसी नेशन बिल्डिंग के क्रम में जब उन लोगों को दिक्कत हो रही थी कि भारत का इतना डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज है, उस पीरियड में भी उतना ही होगा जितना अभी है,
ऑन रिकॉर्ड भारत में 1600 से ज्यादा भाषाएं हैं और उसको 234 क्लासिफाइड लैंग्वेजेस के अंदर में ग्रुप किया गया है। तो अब मुझे बताइए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है कि नेशन बिल्डिंग तो अभी हमारा जो नेशन बिल्डिंग है अगर हम उसको कंपेयर करें यूरोपियन प्रोसेस से तो टोटली डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट। हम तो नेशन पहले ही से हैं, 5000 पहले से भारतवर्ष है, उसको नेशन के बनने की जरूरत ही नहीं थी, उसके लिए एक यूनिफाइड लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं थी। भारत में हजारों लैंग्वेजेस हैं एंड स्टिल भारत एक है, और आज से नहीं है, वो 5000 साल पहले से है। तो यूनिफिकेशन और नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, ये पैजामा जो जबरदस्ती हम लोग को पहनाया गया या हम लोग उसको उसी माइंडसेट से देखने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम बना देता है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम हिंदी को बोलते हैं कि ये प्योर है, भाई हिंदी प्योर कैसे हो जाएगा बताइए? भोजपुरी को आप अलग कर दीजिएगा, मैथिली को अलग कर दीजिएगा, बंगला में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, मैथिली और बंगला में बहुत मिक्स होता है। बज्जिका मेरी भाषा है, उसको कैसे अलग कर दीजिएगा बताइए? मैं अगर जब हिंदी बोलूंगा तो क्या हिंदी में मेरी बज्जिका भाषा नहीं घुसेगी? बज्जिका इज मोर पावरफुल देन हिंदी, क्योंकि बज्जिका लिच्छवी के समय से है, वो भगवान बुद्ध के समय से बज्जिका की भाषा है। और बज्जिका में श और स में बहुत फर्क होता है। हम लोग बज्जिका की जब भाषा बोलते हैं तो भाषा नहीं बोलते हैं, भाषा बोल देते हैं, स दंत स, मूर्धन्य श नहीं बोलते हैं, राइट। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शब्द हैं जिसका इन्फ्लुएंस हमारे हिंदी, जब हम आप बज्जिका या मैथिली बोलने वाले लोगों से बात कीजिएगा तो उसकी हिंदी में थोड़ा सा मिठास होता है। सिमिलरली जब आप भोजपुरी बोलने वाले लोग जब हिंदी बोलते हैं तो उनकी मिठास घट जाती है। सिमिलरली जब पंजाबी बोलने वाली या हरवानी बोलने वाले लोग होते जब हिंदी बोलते हैं तो उसकी मिठास जो है और खराब हो जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए, हिंदी को हम प्योर कैसे करेंगे? हिंदी को कभी नॉर्थ से पंजाबी आ जाता है, ईस्ट से असमीज आ जाता है, बंगाली आ जाता है, भोजपुरी, मगही, अवधी, कौन कौन भाषाएं नहीं है जो फीड नहीं करता हिंदी को। तो अब मुझे बताइए कि अब हिंदी को हम हिंदी माने कैसे? वो तो हिंदी है ही नहीं, वो तो जबरदस्ती इसको पैजामा पहना दिया है ग्रीक लोगों ने। उसको जब उनको हिंदी सिंधु बोलना नहीं आता था तो हिंदी शुरू कर दी उन्होंने, और उसके बाद से हमने उसको बोला कि भाई ये हमारी जो ये सारी भाषाओं में जो बोलने वाली जो भाषा है, जो स्टैंडर्डाइज्ड, जो कैपिटल दिल्ली रीजन के अंदर जो बोला जाता है, जो हिंदी या जो भी भाषा बोली जाती है उसको बोलो, चलो आज के बाद से वो हिंदी हो जाएगा। एंड चूंकि कैपिटल रीजन में बोलने वाली भाषा है और पहले अगर वो बंगाल में होता तो हो सकता है बंगला हमारा हिंदी हो जाता, हमारा नेशनल लैंग्वेज हो जाता। तो ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को हम कैसे दें? मैं इस बात पे आपसे डिस्कशन करूंगा। अब इससे पहले कि कुछ और डिस्कशन आपसे मैं करूं, मैं प्रोफेसर गोस्वामी सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो काइंडली आए और इस मैटर पे जरा और थोड़ा सा हम लोग को इनलाइटमेंट दें, सो दैट थोड़ा सा क्लियरिटी आए। बिकॉज सोशियो लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेक्सिकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, या बोलचाल की भाषा के पर्सपेक्टिव से, मुझे लगता है कि अभी भारतवर्ष में गोस्वामी सर से अच्छा गुरु अभी हमें कोई नहीं मिलेगा। तो लेट्स इनवाइट हिम for his view and take something from him. Sir, please. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पहले। हेलो। हाँ, loud and clear, sir. Dr. Ravi Kumar and friends, it's a great pleasure for me to discuss on this topic because I have written some of the papers and I have also, and some of my students have also worked under me on this topic. And I think, first of all, I would like to say that what's the problem is that we don't understand the philosophy of the language. What is the language? And language has so many aspects. It is a very vast, it has very vast area.
So language cannot be taken as a small, small things. You know that language has four aspects, four qualities. Then it becomes languages. The language starts with the language comes up. The first stage is the pidgin. Second is the creole. Third is the dialect or sub-dialect or dialect. Then it becomes the language. It has tradition, history, a long history. It has its vitality. It has its autonomy. It has its standard form. So if it is not standard form, it is not language. If it is not, but it has no vitality or autonomy, it is not language. So language has so many things. It is not a simple thing that we can discuss. And because that it's the same way. Hindi, in the present day India, Hindi, I know I can discuss about the Hindi and the English, but your topic you have taken. Hindi in the present day India qualifies as a language having multi-faced domains of use. Used in so many domains. And now, as you know, it has become the official language of India, and is used in every aspect, not only in administration or science. It is also used as a colloquial, as interlingual bhasha, lingua franca of the country. It is to discharge various functions in different roles in the network of speech community. So ये हिंदी का अपना जो रूप है आज के इंडिया में बहुत व्यापक है, वाइडर है, और आप उसको हिंदी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और ये जो कुछ कहना कि हिंदी का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, कुछ नहीं कहा मुझे पहले जो वक्ता ने, हिंदी का ऐसा स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि जो आप समझे, तो उसके अंदर कई चीजें आती हैं। जब किसी भाषा का ज्यादा प्रयोग होता है, जब उसका बहुत वाइडर एरिया हो जाता है, तो वो लैंग्वेज बहुत हो जाती है, बहुत होती है। और हिंदी इज अ वेरी पर्टिकुलर लैंग्वेज, like other Indian languages. It's not, we cannot compare it with other languages because it has been lingua franca of this small community. Smaller means the people of the downtrodden people. Hindi region shows a continuous chain of dialects, which most of the languages, most of the languages have their own dialects. Bangla has also dialects, Marathi has also dialects, Tamil and Telugu, Malayalam has also dialects, but Hindi has a variety of dialects, so many dialects. It is from Rajasthan to Bihar, and you'll see that it has the 18 major dialects. According to our linguistic survey, it has 18 dialects, but other sub-dialects are also there. The verbal repertoire of Hindi sub-community is geographically dialects are there, and on the social aspect, socially marked speech usage, it has superposed variants. So many things they have. So it can be said that you cannot say India is a multilingual country, but Hindi region is also a multilingual region. Hindi has also so many dialects, so many social acts, so many other varieties it has. And I will tell you all this. So it has three distinct linguistic strata it has. One of the three, you can say, the three distinct linguistic stratas. One is the local or village dialect. Second is the sub-regional language levels. And the third is the regional language level. So you see that at language level, the continuous chains of mutually intelligible local dialects are there. And there's some of the scholars of America, Europe, and Russia have done a lot of work on Hindi dialects. From America, this Nabov, Gumpers, Fishman, Ferguson, even Gumpers have visited India, and he went to this near Saharanpur village, and he surveyed there. I think 40 years back or 50 years back,
and he went there. He saw the dialects of the village, different dialects, different forms of the various varieties are there. So he saw this one. अब वो जो गया था गंपर से वहां पर किया और वहां पर जाके देखा तो उसने कहा कि ब्राह्मणों के अलग से एक फॉर्म है, बनियों का अलग से फॉर्म है, मुस्लिम का अलग से फॉर्म है, जो दूसरा जो जो डाउन ट्रेडन जो था वो लोगों का अपनी एक अलग से लैंग्वेज उनकी अपनी होती है। ये उसने सारा पूरा सर्वे करके और पूरा उसका एक बुक लिखी, किताब उसने डायरेक्ट उसने आर्टिकल पर लंबा आर्टिकल दिया और अपनी बुक में उसको दिया है। तो उसने जो लिखा जो गंपर्स हैं, तो ये कहते हैं कि ये जो कई तरह की है, तो विलेज डायलेक्ट हिंदी भारत जो हिंदी रीजन है, इसमें आप हिंदी भाषा पे, हिंदी लैंग्वेज पे लोकल जब विलेज डायलेक्ट, आप देखते हैं कि जब वहां पर हाट बाजार होते हैं तो विलेजेस में, तो डिफरेंट विलेजेस से लोग आते हैं और कैसे उसमें आके काम करते हैं, तो उस तरह से वो जो डायलेक्ट्स है उसके साथ है। तो ये एक तरह से म्यूचुअली इंटेलिजिबल ये लोकल डायलेक्ट्स होती हैं। और दूसरी सुपरपोज्ड जो सब रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपके राजस्थानी में आपके जो मारवाड़ी है या मवाती है या आपके जो है हड़ौती है या मालवी है, इस प्रकार के जो कई वहां पर, और जैसे पहाड़ी में आप देखिए तो गढ़वाली है, कुमायूनी है, ये इस प्रकार आप इसे जहाँ जाए तो आपको हिमाचल प्रदेश में कई तरह की वैरायटीज उसमें जो सब रीजनल जो लैंग्वेज के मिलते हैं वो हमें वहाँ मिलते हैं। और इसलिए आप कह सकते हैं कि जो हिंदी है तो उसमें फिर आपके जो आप कहते हैं उसको जो राजस्थानी है, ये पहाड़ी है, ये फला है, लेकिन पहाड़ी और राजस्थान में भी अपने अपनी वैरायटीज हैं, अपने अपने उसके फॉर्म्स हैं। तो इस किसी फिर थर्ड जो आप देखेंगे दैट इज हिंदी उर्दू रीजनल जो लैंग्वेज लेवल है, जो एक पूरा लैंग्वेज के हिसाब से है, वो हमें उसके बाद मिलता है। और इसमें आप देखेंगे कि जो ये रूप हमारे सामने जो दिखाई देते हैं, ये जो फंक्शन द फुल गैमेट ऑफ फंक्शनल स्टाइल shows so many varieties. So we have these three varieties have been recognized. There is Sanskritized Hindi, the second is Perso-Arabic mixed Hindi, and we call it Urdu or Rekhta, and the colloquial graduate style is Hindustani. This English mixed in English has come afterwards, and it has not showed much recognition so far. So with this, it was you know that in Dakhini in Hyderabad, the area near the Bidar and near the border area of Maharashtra, Karnataka, and Hyderabad, this Andhra or Telangana. We have seen Telangana. You see, there's one is Dakhini is there. This style was given by South Sufi saints of South. This has been another style of this. This Dakhini is there. I have also in the 90s I conducted a seminar on this Dakhini Hindi, and that book has been published. So many people talked about, some scholars talked about this. And though there's this language, so we have so many aspects there. There's we can say in Hindi, उसकी माँ मर गई, उसकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, उसकी अम्मी जान की फौत हो गई, या उसकी मदर की डेथ हो गई. This is not only the linguistic aspect, it's also social perspective also. तो ये सोशल पर्सपेक्टिव भी इसके अंदर भीतर है, और इसलिए इंग्लिश को हम अभी ये जो दक्षिणी, हालांकि एक रीजनल एस्पेक्ट है जो कि गोलकुंडा के आसपास या जो महाराष्ट्र और जो है कर्नाटक के बीदर के आसपास वो जो बोली जाती है भाषा, तो वो भाषा गुलबर्गा है, बीदर है, औरंगाबाद है, इधर हैदराबाद का ये इलाका जो है ये दक्षिणी हिंदी का है, और ये तेलंगाना में हिंदी बोल जाती है। लेकिन ये जो है ये हिंदी का अपना एक रूप है दक्षिणी हिंदी, कुछ लोगों ने इसको दक्षिणी उर्दू भी कहा है, लेकिन ये जो सूफी सेठ जो थे, सूफी संत थे, उन लोगों ने इसको रखा था। तो ये जो आप देखेंगे कि ये जो आपके जो है, तो ये जो डिपेंड्स ऑन स्टाइल वेरिएशंस तो हैज डबल टू ईच लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के पास ये जो है एक अपनी स्टाइल होती है, एंड बट सच सिचुएशन कैन बी इजीली फाउंड वेरी लैंग्वेज
use two or more styles. Every language has, most of the languages have this two styles, two or more styles, which are not only socially or culturally conditioned, but have a well-defined linguistic context. This is we call, in linguistics, we call it diglossia. So diglossia is there. And you know, in Bangla language, they have two styles, sadhu and chale. One is the culture, the literary form or the written form. The other is the colloquial form. And this term we got sadhu and chali. In Kannada, we have Granthika and Vyavarika. Even Telugu, it is also Granthika and Vyavarika. In Tamil, there is a Piru and Pichu. But Hindi it has been recognized in the these three styles, that is Hindi, Sanskritized Hindi, Perso-Arabic, mixed Hindi, that is Urdu, and the third is the Hindustani. And fourth now, this come up this English also, English mixed Hindi, that is English, we have this thing. And now the Hindi, I have told Hindi as diglossia, so Hindi and Urdu, they are in the state of horizontal diglossia. Because you know that the same structure is there. Most of the structures are equal, similar. But this the vocabulary of Hindi and Sanskrit, most in Sanskrit is there, and that is in Hindi. And you can also see that Urdu of Pakistan and Urdu of India are the different. They are mostly influenced by the Persian or the Arabic. But in Indian Urdu is not too much influenced by the Persian or the Arabic. So they have different sides. So but this they have, so you can say they have the same level. They are a horizontal level. This has the Urdu and Hindi. And this the second that Hindi and Hindustani are the vertical level. But this English is neither in horizontal diglossia or not in the vertical diglossia. It is a simple superposed, I could call it, a superposed variety of Hindi, because it has come from, that's why I will talk about this other thing, that is a code switching. So whenever we talk, there's a problem in English. The problem has come because of this code switching. We have taken this English only because this code switching is also related. I have served some of the regions, some of the areas of Delhi. In 1978, I went to different areas and where some of the people from other. अरे ये कहाँ से आ गया? दीदी को जरा कहो कि ये नहीं. It seems. Hello. Sir, there is. Hello? Yes. We are listening to you, Hello? sir. Yes, we are listening to you. Hello. We are listening, sir. अरे उसने फिर वहाँ कर दिया. Hello. बोलिए sir. Hello. Are you listening? Yes. Are you listening? Yes. No voice. अनम्यूट करें सर पहले अपने आप को. Hello. हाँ, अब ठीक है. Hello. अब ठीक है सर. Hello. 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 आ रही है, आवाज आ रही है. Hello. आ रही है सर, आवाज आ रही है. No, I can speak. Yes. Please. Okay. So, as I was telling this one, that because this code switching has come because the local languages have been mixed with the dominant languages. This dominant language may be the regional, or the national, or the international, or the post-colonial languages. You know that we have this Persian and Arabic influence because of the Mughal period. So it has made
influenced our language. And the English in India is a post-colonial language which has given the mixed variety of this one. So English is the result of the post-colonial language, and English is the dominant language during that period. And one of we also carrying on that dominant language, we are not taking care of our language Hindi. There's a problem. Our people are not taking interest in our Indian own languages, but in English, the foreign language they are going there, and that's the problem. This, and also in code switching, we have two types of this switching. One is I call it code shifting and code mixing. The code shifting is a sentence level, the mixing of the language, and code mixing is in the word level, this language. That I just can say, मेरे father कल fruit लाए थे, and टीबी के ट्रीटमेंट के लिए कोई खास खर्चा नहीं लगता. ये हम वर्ड्स हम ये बोलते हैं, ये कोड मिक्सिंग है, इसमें फादर और फ्रूट के लिए कह दिया, उसमें ट्रीटमेंट टीबी का कह दिया. और ऐसे कोड शिफ्टिंग में आई एम सॉरी, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, आई एम सॉरी, ये हम बोलते हैं. तो हिंदी इज नॉट ओनली वन थिंग, it is used on regional, national and international level. इसे जो है जनपदीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये बोली जाती है. और इसलिए आप देखेंगे कि इसके रूप हमें मिलते हैं. और मैं बताया जैसे कि इंडिया है, तो आप देखेंगे कि जितना रूप हमारे सामने इंडिया में भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, वी कैन फाइंड सो मेनी वेराइटीज. पंजाब is a Punjabi Hindi, in Bihar is in Bihari Hindi, in Bengal is a Bengali Hindi, in the Madras in South India it is a Madrasi Hindi, and even in so you see there's so many varieties there in this. A student of mine has also worked on the Hyderabadi Hindi. They did research, PhD research in Hyderabadi Hindi, and one has done on Kochini Hindi. The Kerala side Hindi was there, how it was spoken, where Malayalam, where in Hyderabadi, Telugu words are used mostly, and it's influenced by the structure of the grammar of Telugu also. And in Kochini Hindi, it was mostly influenced by this Malayalam language. So this has the languages. So these two people, students of mine, who worked in 30 years back on Hyderabadi Hindi and the Kochini Hindi. So in national Hindi, you see in national level, we have so many varieties of Hindi. So we cannot leave it this one. So it has to be in international level. We can see Mauritius. Mauritius is also Mauritius Hindi. There is not a different type of Fiji Hindi. Mauritius has the influence of French there. And in Fiji, the English, Suriname Hindi, Trinidadi Hindi. So many varieties are there. And if you can so go, as you know, the English has a wider area, so many varieties, because it's used in the international level. And you know that in English has a British English, American English, Australian English, Indian English. I have also, a student of mine also worked under me on the Indian English. So we are seeing so many varieties of this, different from English, in British English and Hindi, and Australian and American English. So I gave her this passage to this research to do some research on the Indian English, and we should also compare this with the British English, with American English, with Australian English. And this British English is recognized as a standard form of English. I mean, America is also claiming that in the American English is the we say the standard form, but even though the most of the scholars do not say that it has come from this Britain, and no, it cannot be said that we can say that it is a conflict between them. So we are not going to decide. So सर एक सवाल पूछना था सर, एक सवाल पूछूं? English has so many varieties. Sir, I have a question. So Sir, एक question है.
variety of these things. And I want to say this we have to borrow some words from other language. Every language borrows some of the languages which we have not that vocabulary or that word which has the same concept as in the other languages. As you know, the protein, as we see in this, um, as we see in the protein or the vitamin or other thing, computer. The computer has even we have Sanganak is there, Abhikalitri is there. But even then, we say simple Hindi and जैसे आपने रवि कुमार जी ने कहा कि जटिल हिंदी और सरल हिंदी के लिए तो सरल हिंदी के आस्पेक्ट में है लेकिन ये जो सरल हिंदी और जो कठिन हिंदी है जटिल हिंदी है इन दोनों को आप कुछ नहीं कह सकते जो आप देखते हैं कि संस्कृताइज्ड हिंदी जो पूरब में जो ईस्ट में जहाँ पर बंगला और उड़िया बोली जाती है वो संस्कृताइज्ड हिंदी की ज्यादा प्रेफर करती है इवन द्रविड़ पीपल जो तमिल तेलुगु वाले संस्कृताइज्ड हिंदी को पसंद करते हैं लेकिन आप देखेंगे कि नॉर्थ और वेस्ट में जो है पर्शियन और अरेबिक हिंदी को ज्यादा पर्शियन और अरेबिक वर्ड को ज्यादा पसंद करते हैं so it is a very conflicting problem so how can we this so but this see the borrow we borrow those words we have to borrow so we can borrow these words but we cannot adopt everything मेरे पिताजी मेरे फादर फ्रूट लाए हैं we have word father we have word for fruit why should we use the fruit and father so we have this well if not this is quarantine in this corona period we have used we are having the word no have got this word quarantine but we have this word this in Hindi this technical word the sangrod and in a colloquial language we have sutak so you are using sutak whenever this problem comes here so sutak is there so we use the sutak word in our colloquial language but we use this technically we use this sangrod this word so this sangrod this is the technical so we can take technical word because the technical development and scientific development is coming from Europe or from America we have to adopt some of the things from there so we can take but if we have our words so we can have this word and you know that we the Hindi has adopted rail gadi that from for train please but 1 minute only I will take only thing so I would like to say that English is a variety of standard Hindi Hindi is a standard language it's wrong to say that Hindi is not a standard so it is wrong and we can say that Hindi is that we can use people use and they want to show themselves socially or psychologically they want to show that we know English also that is nothing but it is also there sometimes we have to use this English because other person who does not understand Hindi so much so we can use them but there are variety it cannot be taken this Hindi and this Hindi has its tradition, Hindi has its literature. It is there. So we have to. So we cannot recognize the varieties. Varieties are there. Every language has varieties. So we should say that if it is done, if you want to maintain standard Hindi, so we have to use the standard language, not the varieties. Otherwise, the language will be marred. We cannot mar or just spoil the language. So language should be there. It should have its own thing. So I should have. I would just say that I should be thankful to Dr. Ravi Kumar, who has given this time, and I can be discussed so much things. I can give it so many varieties. I can give some material there. I have written articles in Hindi and English, so I can give it this one. I can so in India also, Dr. Ravindranath Srivastava, Krishnamurti, Dr. Kelkar has done work on this one in India also, and we have been I've also done this work after these scholars. So there's no problem. So this is what I should definitely say
and very forcibly I will say that English cannot be adopted as a language. It's a variety of language Hindi. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक आध क्वेश्चन है, मैं अगर आप इजाजत दें तो एक आध सवाल करूं सर। कुछ सर एक चीज बताइए, मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों ने मैसेज भेजे हैं कि भाई जब आप हिंदी लिखते हैं तो उसमें उर्दू मत वो यूज कीजिए, उसमें फिर उर्दू भाषा को मत यूज कीजिए, उर्दू शब्द मत यूज कीजिए। उसके बाद कुछ अरबी के शब्द आ जाते हैं, कुछ पंजाबी के शब्द होते हैं, कभी कभी कुछ बंगाली के शब्द आ जाते हैं हिंदी बोलते समय या लिखते समय। और जब अगर पंजाबी, उर्दू, पर्शियन, अरबिक के शब्द हमारी भाषा के बोलचाल की भाषा में जब आती है तो अंग्रेजी की भाषा क्यों नहीं आएगी? और अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि ना आए तो उसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे। अब जब ज्यादा मेहनत करेंगे तो फिर वो बात हूँ कि आप जो उर्दू है, उर्दू कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, ये एक वैरायटी है हिंदी की, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर इसको उर्दू को अलग रख दिया गया। और ये समस्या जो अब 1947 से पहले ये समस्या उठी थी और इसलिए महात्मा गांधी ने उसका समाधान भी ढूंढने की कोशिश की थी। 1900 जब आजादी की लड़ाई के समय ये सवाल उठा कि हिंदी और उर्दू, ये हिंदी अच्छी है या उर्दू बढ़िया है, इस सवाल उठा था। और महात्मा गांधी ने कहा नहीं, अब आप उसको देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो हिंदी है, और अगर आप उसको अरबो पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो वो उर्दू हो जाती है। ये उन्होंने इस बात के, अगर आप जो बोलते हैं उसको उन्होंने हिंदुस्तानी कह दिया, ये उन्होंने एक तरह से समाधान निकाला जो कोई। और उसके बाद ये जो बाद में हुआ ये एक पॉलिटिकल लेवल पर है। हम लोग, बल्कि मैं आपको बताऊं कि 1976 में पटियाला में एक पटियाला यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ था और मैं उसको, मुझे बोलना पड़ा था हिंदी और उर्दू के कंटेक्स्ट में। तो मैंने ये कहा कि ये हिंदी और उर्दू जो है ये हिंदी वैरायटी है और ये पाकिस्तानी उर्दू और हिंदी जो है हिंदुस्तानी उर्दू में फर्क है। और इस बात को जो वहाँ पर जो ऑल इंडिया उर्दू कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन मुझे भेजा गया था क्योंकि मुझे उर्दू भी आती है और हिंदी भी आती है। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर जो है जो वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिक उसका 76 में जो वाइस चांसलर थे वो वही लिंग्विस्ट थे, भाषा विज्ञानी थे, वो वहाँ बैठे प्रिजाइड कर रहे थे। तो बहुत से स्कॉलर उर्दू के मुझसे भिड़ गए कि आपने ये कैसे इसे कह दिया। तो मैंने उनको जब बताया, मैंने कहा कि आप 6 साल के बच्चे को, अगर आप बच्चे के छोटे अगर आप देखें तो उनकी भाषा दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। और इसलिए मैंने कहा मैंने स्टडी करके देखा। तो फिर उसके बाद बहुत हुआ तो वाइस चांसलर ने वो बहस रुकवा दी। लास्ट में उन्हीं वाइस चांसलरों के मुस्लिम थे, जामिया मिलिया के इस्लामिया के वाइस चांसलर थे, उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी ने एज ए लिंग्विस्ट ये बात की है, नॉट एज ए कुछ उसने आपने को हिंदी और उर्दू के पक्ष में बात की है। जो बात उन्होंने की उसमें उनकी, मैं लिंग्विस्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि लिंग्विस्ट जो स्टडी करता है तो बड़ा निरपेक्ष भाव से, बहुत ही किसी उसमें नहीं रहता है, उस दृष्टि से वो बात हुई। तो ये जो हिंदी और उर्दू का झगड़ा ये पुराना है और ये सब पॉलिटिकल मामला है। लिंग्विस्टिकली हम हिंदी और उर्दू में कोई, सिर्फ हम एक उर्दू को वैरायटी के रूप में मानते हैं और ये उसको लिया है। तो क्योंकि पाकिस्तान ने उर्दू किया था, यहाँ भी लोग कर रहे थे, तो उर्दू को हमें उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्थान दे दिया, इसे देना पड़ा क्योंकि हम चाहते थे। तो आप देखिए भाषा जो होती है वो किसी एक समुदाय के, कम्युनिटी की नहीं होती है। अगर ये भाषा समुदाय होती तो बांग्लादेश में जो बांग्लादेश में जो ईस्ट पाकिस्तान में जो किया था, जो वहाँ के शेख साहब ने शेख मुजीब जो किया था, वो क्यों किया था? वो बंगला कर रहे थे। भाषा से किसी से संबंध नहीं होता, भाषा सबकी है। तो ये उर्दू और हिंदी का झगड़ा हम जबरदस्ती ले रहे हैं और ये उर्दू को आप देखेंगे ये सब चीजें पॉलिटिकल लेवल पर ही हो रही। और आज देखते हैं कि लोग हिंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
कि आप जो है डायलेक्ट्स को भी ले लीजिएगा, डायलेक्ट्स को दीजिए आप 8 शेड्यूल में, मैथिली को डाल के हुआ, अब भोजपुरी के लिए हो रहा है, राजस्थानी के लिए हो रहा है, छत्तीसगढ़ी के लिए हो रहा है, 38 लैंग्वेजेस आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में कि आप हमें इनको उसमें डालिए। हिंदी को तोड़ने का हो रहा है, तो ये जो चीजें हैं हमें उसको ज्यादा नहीं इसको टूल दे। मैं जो बात की एज ए लिंग्विस्ट बात की है, मेरा पॉलिटिकल लेवल पर इस पर कोई नहीं, ना मेरे अंदर किसी भाषा के प्रति कोई वितृष्णा है। मैंने बताया आपको कि मैंने उर्दू पर भी काम किया, पंजाबी में भी मैंने काम किया, इंग्लिश भी मैंने रिसर्च कराया और मैंने हिंदी की कई वैरायटीज पर काम कराया। तो मुझे ये मैंने जो देखा और मैंने पूरे देश के भाषाओं को पर मैंने ध्यान रखा है, तो मैं जानता हूँ कि हिंदी का इतना वर्सटाइल इसका अपना जो है वो और भाषाओं में इतना नहीं है। तो हिंदी को हम ये मैंने कहता कि आप लोकल लेवल पर आप बोलिए, जैसे हिंदुस्तानी बोलते हैं, हम देखिए संस्कृताइज हिंदी में आपको जो है कई ग्रंथ, कई नावल, जैसे बाण भट्टी आम कथा, हजार प्रसाद वेद ने संस्कृताइज हिंदी में, राजेंद्र सिंह बेदी और अन्य जो है लोगों ने उर्दू में लिखा, तो उसमें जो है वो एक अलग से, नेहरू जी ने जो अपने या दूसरे लोगों ने हिंदुस्तानी में बात की। आजकल जो नावल आ रहे हैं इसमें भी आप जो है इंग्लिश के वर्ड दिए जा रहे हैं। शिवानी के आप वो नावल पढ़िए या किसी और के पढ़िए, आजकल के जो पिछले जो इसे पिछले 20-25-30 साल में जो नावल आ रहे हैं, इनमें अब जो है आ रहा है इंग्लिश भी कुछ वर्ड्स अंग्रेजी के आ रहे हैं। तो ये कोई इसके लिए कोई वो बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसके लिटरेरी फॉर्म को, अगर आप वो पूरे वर्ड को पूरे देश को एक सूत्र में बांधो, अगर आप देश को जोड़ना चाहते हैं, अगर आप वर्ड के साथ अपनी कम्युनिकेशन, क्योंकि लैंग्वेज जो है ये इज ए फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है, इसका फंक्शनल जो कम्युनिकेशन का मेन है। तो अगर उसे आप लैंग्वेज को कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपनी बात को, तो लैंग्वेज को आप एक जैसा रखना पड़ेगा, चाहे आप वर्ल्ड लेवल पर जाएं चाहे आप नेशनल के लेवल पर। तो आप नेशनल चाहते हैं कि अगर हर आदमी अपनी अपनी हिंदी बोलेगा, अपनी अपनी भाषा में बोलेगा, तो दिक्कत पड़ेगी। इसलिए आपको जो है अपनी भाषा को बना के रखना है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमें उसको लेना। बहुत अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, लेकिन उससे पहले दीपान्विता आई हैं इग्नू से। दीपान्विता इग्नू में प्रोफेसर हैं फ्रेंच की, तो मैं दीपान्विता से भी जरा एक बार रूबरू करना चाहूंगा आप सबका। और दीपान्विता के लिए एक सवाल है मेरे पास, अगर वो चाहें तो उसको इग्नोर भी कर सकती हैं। अब दीपान्विता मुझे बताइए कि जब हम प्योरिटी की बात करते हैं किसी भी भाषा की, चाहे वो फ्रेंच हो या इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, जी, हम हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हिंदी में संस्कृत तो था ही, उसके बाद पर्शियन, अरबिक, एंड उसके बाद जैसे जैसे जितने रूलर आए, कुछ चाइनीज वर्ड्स भी कहीं कहीं से आ गए, कुछ कश्मीरी वर्ड्स आ गए, कुछ साउथ से आ गए कुछ वर्ड्स, ये आते गए और हमने उसको अपना बनाया। और अंग्रेज हमारी मातृभूमि जिसको बोलते हैं भारत माता, उस पे उन्होंने राज किया, एक तरह से हमारे बाप बन के रहे वो 200 साल से ऊपर। तो ऐसी स्थिति में जब बाप और माँ दो डिफरेंट कल्चर के हों, तो जो बच्चा होगा वो एक मिक्स ब्रीड तो बनेगा ही बनेगा, नंबर 1। एंड उस मिक्स ब्रीड में उसका लैंग्वेज भी उसके अंदर इन्फ्लुएंस तो आएगा ही आएगा। तो अगर मान लीजिए हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लिखा बच्चा अगर उसमें 2-4 शब्द अंग्रेजी का जोड़ देता है, तो ये कितना जायज होगा और कितना एक्सेप्टेबल होगा और कितना निगेट करने लायक होगा, ये एक सवाल है आपके। थैंक यू रवि जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। और चूंकि मेरी जो मेन प्रोफेशनल फील्ड है वो फ्रेंच भाषा है, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो इसी के संदर्भ में मैं हिंदी के बारे आपने जो मेरे से प्रश्न किया, मेरे विचार से हिंदी बहुत ही समृद्ध भाषा है अपने आप, साथ ही साथ उसमें सोखने की ताकत बहुत ज्यादा है। जैसा आपने कहा, जिसे हम कहते हैं बोरोइंग एंड रिक्रिएशन ऑफ लेक्सिक, रिक्रिएशन ऑफ वोकैबुलरी, वो
उस लिहाज से भी हिंदी बहुत समृद्ध है, सोखने की काबिलियत बहुत है। इसलिए बाकी जो भी हम पे इन्फ्लुएंसेस आते गए, हमने उसमें से शब्दों को चुनकर अपना बना लिया। और दूसरी तरफ हिंदी के कई शब्द भी उन भाषाओं में जाकर उन भाषाओं को समृद्ध किया। आज भी कॉलिंस डिक्शनरी में बाजार और इस तरह के कमरबंद, कई तरह के ऐसे शब्द हैं जो आए दिन जुड़ते रहते हैं उन भाषाओं से भी, और हिंदी भी उनसे लेती रहती है। तो हमारे फ्रेंच में एक टर्म होता है जिसे हम वा ए विया बोलते हैं, कमिंग एंड गोइंग। सो इस तरह की दो तरफा जो लेन देन की प्रक्रिया है, वो मेरे ख्याल से हिंदी को आने वाले दिनों में और अधिक समृद्ध बनाए। और जहां तक प्योरिटी ऑफ लैंग्वेजेस की बात है रवि जी, मेरा अपना इसमें विचार ये है कि मिक्स्ड लैंग्वेजेस जो हैं, मिश्रित भाषा अब रहेगी, चाहे वो अंग्रेजी का प्रश्न हो, चाहे हिंदी का प्रश्न हो, चाहे फ्रेंच का प्रश्न हो, या कोई भी दुनिया की भाषा हो। हम पूरी तरह से उसमें प्यूरिटी बनाने के लिए अगर उसको फंक्शनैलिटी के पर्सपेक्टिव से हम देखना बंद कर दें, तो शायद उसका उपयोग उस प्रकार हम नहीं कर पाएंगे जैसे कि एक भाषा का बेसिक फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का। तो कुछ हद तक तो मिश्रण होगा और होकर रहेगा, हो रहा है, लेकिन उसका जो अपना प्योरिटी ऑफ लैंग्वेजेस है, आई थिंक वो भी अपनी ओर से साहित्य के दृष्टिकोण से वो भी मेंटेन्ड है। और साथ साथ जो हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं, जो रोजमर्रा की भाषा है, वो भी अपने आप में समृद्ध हो रही है। और विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जैसे जैसे टेक्निकल वोकैबुलरी किसी भी भाषा में बढ़ रही है, मैं तो फ्रेंच के बारे में कहूंगी कि फ्रेंच में कई ऐसे शब्द हैं जो फ्रेंच में नहीं होके अंग्रेजी में फ्रेंच वो यूज करते हैं। हम कई बार मोड पास के जगह पे हम पासवर्ड यूज कर लेते हैं क्योंकि पासवर्ड अधिक उपयोग में है। तो इस तरह की मिश्रण जो है वो होती रही है और होती रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरी तरह से अगर प्यूरिफिकेशन की तरफ जाएं तो शायद ये आज के दौर में उतना मुमकिन नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। अब देखिए, मुझे एक शब्द है, एक महानुभाव है जिन्होंने कमेंट किया है, वो ये बोलते हैं कि जब आप हिंदी में बोलते हैं जी, तो हिंदी बोलते बोलते कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं आप इंग्लिश वाला, जी, जो इवन कॉमन मैन इंग्लिश में भी ना समझे, इंग्लिश बोलने वाला भी ना समझे। तो इसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? और अगर मैं जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, अगर मैं इसे जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ तो फिर मैं अपने आप पे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पाता हूँ अपने आप। तो ये इसका क्या समाधान निकाला जा सकता रवि जी, भाषा का जैसे मैंने कहा उसकी प्राथमिक जो फंक्शनैलिटी है वो है कम्युनिकेशन। और हम कई बार इसका मजाक के तौर पर भी कई लोगों के बारे कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करते हैं कि हमारे ऊपर से बात निकल जाती है। तो वहां पे कम्युनिकेशन क्रैश हो रहा है, कम्युनिकेशन लैप्स हो रहा है। और मेरे विचार से अगर भाषा अपनी मैसेज पास करने में सक्षम नहीं हो रही है तो वो बोलने वाले की तरफ से एक लैप्स है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। रवि कुमार जी, एक चीज बताऊं आपको। जी सर। जी, आपके जो भाषा के जो फंक्शन है, जब हम बड़े बड़े शब्द देते हैं, वो टेक्निकल लिटरेचर जब होता है तो वहां पर उसकी वर्ड्स की अलग, टेक्निकल वर्ड्स की अपने जो रूप होते हैं, तो वहां पर तो वो आपको ऐसे शब्द देने पड़ेंगे बड़े बड़े। लेकिन हम जो सामान्य जो लोकल लैंग्वेज के रूप में या लिंग्वा फ्रैंका के रूप में या आपसी बातचीत में, हमें जितना जो है शब्द जितने सरल हों उतने अच्छा रहता है। मेरा ये पुराना मैं रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग हिंदी को इतना क्लिष्ट या इतना जटिल न बनाएं कि वो प्रयोग में कम आए। ये चीज कुछ वर्ग है, कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीजें चाहते हैं, लेकिन हम इस तरह से ये चीजें गलत है। तो इसलिए जो इन्होंने कहा कि कई बार हमारी क्रैश हो जाती है कम्युनिकेशन में और समझ नहीं आता, ये इनकी बात सही है। लेकिन वो अगर
लेकिन आप किसी टेक्निकल लैंग्वेज में या मेडिकल लाइन में आप जाए या आप लॉ में जाए और जी। लॉ में देखेंगे मर्डर और होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड में फर्क है। तो आप देखेंगे कि वहां पर उसने कहा कि हत्या तो ठीक है, लेकिन उसमें जो आपका जो है वो नर्वस लिखा जाता है, तो दिक्कत होती है। फिर शब्द वहां पर जो 3 जो वहां पर है प्रेजेंट के लिए, अब उन्होंने एक शब्द दिया है कि वो उसमें आता है टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, टू अटेंड द कोर्ट, टू अपीयर इन द कोर्ट। अब टू अपीयर का इन्होंने शब्द दे दिया उपसंजात। मैंने इस पर बड़ी ऑब्जेक्शन किया, मैंने कहा उपसंजात आम आदमी की भाषा के लिए समस्या हो जाएगी, तो इसको क्यों ना आप प्रकट होना या सामने आना, ये सब प्रयोग हो सकता है। तो इस पर कई मेरी जो लीगल जो एक्सपर्ट थे उनसे चर्चा हुई थी। तो इस तरह से जो आम भाषा में जो आप जी। आम आदमी के लिए जो चाहिए वो भाषा आम भाषा ही होनी चाहिए, जो कि मैंने कहा जी, कि हिंदुस्तानी जो अ, शब्द आपका है वो के रूप में है। मैं कुछ बोलना चाहूंगी इसके बारे में रवि जी, इफ आई कैन। हाँ बोलिए प्लीज दीपान्विता जी। आपको बोलने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जी जी। वो एग्जांपल ये है, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आई एम ये सॉरी। शब्द, मेरे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा। या कॉन्शियस माइंड में जी जो शब्द आता है मैं वही बोलता हूं। जी। ठीक है। अब ये कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस तो अंग्रेजी का शब्द है, जी और मैंने ये बहुत ही नेचुरल तरीके से कहा है। जी। अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं ढूंढने का कि इसका हिंदी वर्जन क्या बोलूं, और मैं इंस्टेंटली उसको नहीं देख पा रहा हूं, अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है। आप अब मुझे शायद रवि, बताइए कि क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया ये बोल के? रवि जी, आप इंटेलेक्चुअल्स की कैटेगरी में हैं, तो इसलिए आप ही इसको एक एकेडमिक, एक इंटेलेक्चुअल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं शायद। लेकिन जहां आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के ट्रांसलेशन को लेके परेशान हैं, अगर आप कम्युनिकेट करना चाहें वाकई, तो इसका अर्थ ये है कि आपके मन में जो भाव है, क्या वो आपकी बोली के द्वारा आप प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो इसी चीज को अगर आप घुमाकर बोले तो बात वही रहेगी, आपने उसको अलग तरीके से रख दिया। और मेरे ख्याल से अगर ये हम कर सकते हैं तो टर्मिनोलॉजीज में फंस के हमारी मैसेजेस में लैप्स नहीं होगा। इनफैक्ट इसी से रिलेटेड मैं एक बात रखना चाह रही थी। कनाडा के एक बहुत ही फेमस लिंग्विस्ट हैं जिम कमिंस। उन्होंने अपने इमिग्रेंट्स के ऊपर उन्होंने इंग्लिश सीखने की जो प्रक्रिया है उस पर उन्होंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया था, बिक्स एंड कैल्प, basic intercommunicative language and academic नहीं, advanced linguistic competence। बेसिकली शायद मैं यहाँ कुछ गलती बोल रही हूँ, लेकिन बात है कि 2 कॉन्सेप्ट्स में उन्होंने कही थी कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं कनाडा में, कई बार वो नॉन इंग्लिश जोन से आते हैं। तो कनाडा में आने के बाद जब उन्हें अंग्रेजी भाषा नेसेसरीली मैंडेटरी रूप से सीखनी होती है, तो वो 2 लेवल पे वो भाषा सीखते हैं। एक तो होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि खेल के मैदान में बच्चों के साथ मिलते हुए, घर में बोलते चालते, रास्ते पे, वो बेसिक इंटरपर्सनल जो स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की, वो अक्वायर कर लेते हैं। लेकिन इससे अलग एक एडवांस्ड लेवल होती है, जो कि उन्होंने पाया कि 9-10 साल की एक्यूट एकेडमिक एनवायरनमेंट में ही वो लेवल ऑफ लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो पाती है। तो ये दो पक्ष उन्होंने रखा था बहुत डिस्टिंक्टली अपने आप में। लिंग्विस्टिक तौर पे भी 2 कैटेगरीज उन्होंने बनाई थी, बिक्स एंड कैल्प, जो मेरे ख्याल से हिंदी में भी कई बार हम देखते हैं कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बच्चों में होती हैं, लेकिन उनसे कहिए कि एक अच्छे हिंदी भाषा में एक ऐसे लिखें, शायद वो ना लिख पाए, या बगैर किसी और अंग्रेजी का शब्द या कोई और भाषा का शब्द यूज किए हुए वो 5 मिनट हिंदी में बोले तो शायद वो ना बोल सके। तो 2 लेवल्स होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके वजह से, इससे रिलेटेड एक और थ्योरी है रवि जी, जो फ्रांस में आजकल इस पे बहुत काम हो रहा है। और चूंकि मैं फ्रेंच भाषा पढ़ाती हूँ तो माफ कीजिएगा, मैं शायद हिंदी से ज्यादा आपको फ्रांस के बारे उदाहरण दूं। वहां पे एक फिनोमिनन है, सोशियोलिंग्विस्ट हैं हमारे, उनका एक थ्योरी है ग्लोटोफोबिया।
ग्लोटोफोबिया से उन्होंने ये कहा है कि बोलने के स्टाइल पे, द वे यू स्पीक, if that creates conditions for social discrimination, that is where the functionality of a language fails. Society fails as being able to provide you or not to provide you with the tool of a language to express yourself. So अगर आपकी pronunciation, अगर आपका tonality, अगर आपके बोलने का तरीका ये वजह बन जाता है कि आप डिस्क्रिमिनेट हो एक विशेष लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के भीतर, तो ये होना नहीं चाहिए। आइडियली ये होना नहीं चाहिए, पर ये ऐसा होता है। और ये बात मेरे ख्याल से इंडिया के प्लूरिकल्चरल मल्टीलिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में हम बहुत आसानी से ये बात समझ सकते हैं। कई बार अलग अलग प्रांतों से जब हमारे फिर मैं फ्रेंच क्लास का उदाहरण आपको दूंगी। मेरे सामने एक मिक्स्ड ग्रुप ऑफ लर्नर्स होते हैं, उसमें कोई पंजाब से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है। वो सारे बच्चे इकट्ठे फ्रेंच, बेसिक फ्रेंच मेरे से सीखना शुरू करते हैं। तो टेक ऑफ पॉइंट सबका सेम होता है, लेकिन जब एक्सप्रेशन की बात आती है, विशेष तौर पर जब ओरल लैंग्वेज की बात आती है, तो कम से कम शुरुआती दौर में मातृभाषा का और उसके उच्चारण का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हमें दिखता है। जो बच्चा बिहार से आएगा वो फ्रेंच अलग तरीके से बोलेगा, जो बच्चा साउथ से आएगा वो फ्रेंच अलग तरीके से बोलेगा। यानी ग्रामर वही रह रहा है, शब्द वही रह रहे हैं, लेकिन उच्चारण में फर्क आ रहा है। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ रवि जी कि हम प्योरिटी ऑफ लैंग्वेजेस की बात करते हैं, आजकल इस पे बड़ा इंसिस्टेंस है कि इज देयर एनीथिंग एनी मोर लाइक अ प्योर लैंग्वेज, इज देयर एनीथिंग लाइक द स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे बड़ी सारी डिस्कशंस चल रही हैं आजकल। फ्रेंच लैंग्वेज में अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि फ्रेंच is widely spoken in Africa, Canada, and a lot of countries in the Indian Ocean. तो कैनेडियन फ्रेंच जो है, जो क्वेबेक में बोली जाती है, और जो पेरिजियन फ्रेंच है, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। ना ही सिर्फ उच्चारण के लेवल पे, बल्कि जो शब्द हम यूज करते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, बहुत सारा फर्क है उसमें। पर अगर आप एक क्वेबेकवा को बोलें कि आप जो बोल रहे हैं वो फ्रेंच नहीं है, फ्रेंच तो वो है जो पेरिस में बैठ के वो बोल रहे हैं, तो वो मानेगा नहीं। और इसमें फिर वो बात भी आ जाती है स्पष्ट रूप से कि क्या स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन डिटरमिन करता है? क्या वो एकेडमी फ्रांसेस डिटरमिन करता है? क्या वो कोई और कोई बॉडी है, लिंग्विस्टिक बॉडी, जो कि डिटरमिन करती है कि ये स्टैंडर्ड है और वो स्टैंडर्ड नहीं है? इसको आप कैसे करते हैं? और इस प्रोसेस में क्या आप किसी कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? क्या आप एक कैनेडियन को इसलिए डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उसकी भाषा को आप नॉन स्टैंडर्ड फ्रेंच बोल रहे हैं क्योंकि वो पेरिजियन फ्रेंच नहीं है? तो ये एक सोशियो लिंग्विस्टिक डिस्कशन के उसमें चला जाता है। मैं एक प्रैक्टिकल आपको एक एग्जांपल दूंगा, इस बात का। स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ जी। अब मैंने पढ़ाई किया बचपन से, बचपन मतलब क्लास 6, बचपन तक तो मैं हिंदी मीडियम में था, बोरी लेके स्कूल जाता था जी। और बज्जिका मेरी भाषा है, तो बज्जिका पे मेरा एक तरह से समझिए बहुत ही फ्लो है, अच्छा फ्लो है बोलने का। जी जी। और उसका इन्फ्लुएंस मेरी हिंदी में हमेशा आता है। अब जैसे हमेशा इज तलब शर, और लेकिन जब हम ज्यादा तेजी में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं हमेशा, दंत सा आ जाता, राइट? तो ये हमारे बज्जिका का इन्फ्लुएंस है। मैं बोलता हूँ सर, एक मिनट। और वैसे ही जो अंग्रेजी हमने सीखी है हिंदी इंडिया में, क्लास 6 से लेके BA MA MPhil PhD और या पोस्ट PhD या डॉक्टरेट कीजिए। कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा की जी। मैंने एक पेपर सबमिट किया जी। तो जो हमारे प्रोफेसर थे, जो जिनका ओरिजिन ब्रिटेन में था जी, उन्होंने मुझे A+ दिया उसमें, जी 98% मार्क्स। जी।
उस ऑन द अदर हैंड वैसा ही एक दूसरा पेपर मैंने सबमिट किया जी टू अ पर्सन हु इज अ क्यूबेक्वा, बट ही आल्सो नोज इंग्लिश, बाइलिंगुअल है वो बंदा। जी उसने मेरे अंग्रेजी की ऐसी तैसी कर दी। उसने मेरे उस पूरे पेपर में क्या कम से कम 30 मिस्टेक्स निकाले, जी एंड वो सिली मिस्टेक्स, यू नो, द नहीं है, कॉमा नहीं है, एंड वो ग्रेड मेरा C+ आ गया। तो ये तो इनजस्टिस हो गया ना। मैं इसी पर आना चाह रही थी। बहुत अच्छा किया रवि जी। एंड एक्सक्यूज मी फॉर द वीडियो, थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। कैन आई जस्ट टॉक हाँ प्लीज विदाउट द वीडियो? प्लीज कैरी ऑन। यस मैं इसी बात पर आना चाह रही थी, चूंकि हम लोग सब टीचिंग लर्निंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं समहाउ। मैं खुद टीचर हूँ। तो आजकल एक प्रोसेस की बड़ी बात हो रही है जिसको हम इंटरकल्चरलिटी इन लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। सादी भाषा में बोले तो जो लर्नर है, लर्नर की प्रोफाइल को डिग्निटी देना, उसकी प्रोफाइल को रिस्पेक्ट करना, और वो जो अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल ऑफ नॉलेज को साथ ला रहा है, जो कि उसके उच्चारण में रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसा आपने कहा कि आपकी मातृभाषा की वजह से तालव्य श और श में जो भी डिफरेंसेस आती थी, वो आप जो साथ लेकर आए थे वो रिफ्लेक्ट करता था। तो ये कई बार होता है। और आपने अंग्रेजी की बात बोली, मैं अपने क्लास में फ्रेंच से भी संबंधित सेम इश्यूज देख चुकी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो भाषा की प्योरिटी और मिश्रण के बारे में हम बात करते हैं कि भाई इंटरकल्चरल का जमाना है, वी शुड बी ओपन, वी शुड बी एक्सेप्टिंग, वी शुड गिव अ बिगर मार्जिन। अच्छी बात है, हमने थियोरेटिकल तौर पे इसको मान लिया कि हाँ भाई हमें थोड़ा खुलापन होना चाहिए। जो भाषा अंग्रेजी इज नॉट ओनली ब्रिटिश इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, English can be American English, or why can't it be Indian English? It can be Indian English as well. Right. So इतने दिनों बाद हम इस बात को आज जोर देकर कह रहे हैं कि it is not the standard language of that particular natal country which can claim monopoly over the standardized form of that one language. तो इसलिए शायद हिंदी के लिए भी कई और देशों में, अगर जैसे मॉरिशस में जिस प्रकार की हिंदी बोली जाती है, या बाकी फिजी, ट्रिनिडाड और भी इन जगहों पे जो हिंदी बोली जाती है, उनका अपना स्वरूप है। तो उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मिश्रण जो है वो तो रहेगा। लेकिन हाँ, मैं जिस बात पे आ रही थी आज, जो आपने कहा कि एक टीचर ने इस तरह से मार्किंग की, एक टीचर ने इस तरह से मार्किंग की, तो हम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इसका रिफ्लेक्शन कराते हैं, यानी इवैल्यूएशन। देखिए रवि जी, किसी भी भाषा को सीखने में इवैल्यूएशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका इवैल्यूएशन किस प्रकार का है। एक तरफ से आप ये मानो इन प्रिंसिपल कि हमें इंटरकल्चरलिटी अपने भाषा में रखनी चाहिए, यानी कि हम हर प्रकार के लर्नर का स्वागत करते हैं, हमें हर प्रकार की संस्कृति एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर मैं तो ओरल लैंग्वेज की आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर वो श और स में गड़बड़ कर जाए, या उसकी जो स्पोकन भाषा है ग्रामेटिकली सही होने के बावजूद भी उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसकी रजिस्टर जो है वो मातृभाषा से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, तो क्या उसके नंबर कम आएंगे? और अगर आप उसके नंबर कम दे रहे हैं तो फिर आपने इंटरकल्चरल की प्रिंसिपल नहीं फॉलो की है। ये मैंने कई बार ये डबल स्टैंडर्ड्स देखे हैं अपने यहाँ के इंस्टीट्यूशंस में भी, जिस वजह से बहुत दिनों तक मैं आपसे साफ शब्दों में कहूंगी कि फ्रांसीसी या कोई और यूरोपीय भाषा पढ़ाने में अगर हिंदी का इस्तेमाल होता था तो ये पसंद नहीं किया जाता था। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पसंद नहीं किया जाता था। हालांकि मेरा ये अपना मानना है कि फ्रेंच पढ़ाने के लिए अगर हम देवनागरी लिपि का उपयोग करते हैं तो उससे मामला बहुत आसान हो जाता है, बच्चे सीख जाते हैं। दीपान्विता स्वागता कुछ बोलना चाहती हैं, वो बंगाली इन्फ्लुएंस के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी क्या? जी मैं 1 मिनट बोलूंगा। हाँ यस सर, आप नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप 5 मिनट बोले सर, लेकिन स्वागता को बोलने दीजिए 1 मिनट के लिए। मैं 1 मिनट सिर्फ मैं
अब मैं थक गया हूँ जरा, नहीं सर, नहीं नहीं, गिव मी 5 मिनट सर प्लीज। तो दिन में भी मुझे कई और प्रोग्राम में था मैं अच्छा, मैं इसलिए मेरी ये कहना है कि जो आप कह रहे हैं, असल में आपने कहा कि मेरी जो है सबकॉन्शियस माइंड में जो बात कही है, हाँ, वो वास्तव में यह है कि आप पर अंग्रेजी हावी है। और ये अच्छा। जो लोग जो हिंदी में जो परेशानी होती है उनको अंग्रेजी जो डोमिनेंट लैंग्वेज उनके ऊपर है, वो हावी होने को इससे नहीं बोलते। अगर आप इसका प्रयोग अगर करते रहे सामान्य रूप से, और जितना अगर आप अंग्रेजी का प्रयोग अगर आप करते हैं, तो वो उसके साथ वो जुड़ता है। मुझे अपना अनुभव है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैंने लिंग्विस्टिक्स का कोर्स किया था, जब मैं पढ़ा था, तो अंग्रेजी के माध्यम से मेरा पूरा जो है पढ़ाई हुई थी लिंग्विस्टिक्स की। और जब मैंने पढ़ाने लगा तो मुझे कहा गया कि आपको हिंदी में पढ़ाना है। तो 3-4 साल मुझे बड़ी डिफिकल्टी हुई, कठिनाई हुई हिंदी में बोलते हुए, लेकिन मैं बड़ा परेशान था उस वक्त। तो मैंने 3-4 साल बाद मेरी ऐसी हिंदी अच्छी बोलने में क्लास लेने लगा कि मेरी हिंदी अच्छी होगी, अंग्रेजी के पीछे हो गई। फिर जब मैं उस 30 साल तक मैंने हिंदी में भाषा विज्ञान इंग्लिश पढ़ाया, और जब बाद में CTEC नोएडा में एमटेक लैंग्वेज टेक्नोलॉजी शुरू हुआ, तो मुझे उसका इंचार्ज बनाया गया और मुझे वहां पर पढ़ानी पड़ती थी, तो इंग्लिश के थ्रू पढ़ाना पड़ा। तो मेरे लिए थोड़ा सा जो है उस समय थोड़ी फिर कठिनाई हुई, लेकिन वो जल्दी साल हो गई। मेरा ये कहना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी भाषा में आपके आड़े नहीं आती है। अब ये है कि अगर आप ये करते हैं तो ये एक पूरा एक अलग से इंग्लिश का एक अलग से कैटेगरी हो जाएगी, एलीट क्लास के लिए इंग्लिश हो जाएगी, और वो इंग्लिश हो जाएगी। और एक गरीब जो आम आदमी जो ज्यादा कम लोग जानते हैं इंग्लिश के लिए हिसाब से, तो आपको जो एलीट क्लास के लिए या पढ़े लिखे लोगों के लिए ये इंग्लिश का प्रयोग होगा, लेकिन आम जनता के लिए ये नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये इसका सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसके भीतर। हम कई बार अपने आप को शो करना चाहते हैं तो हम शब्द डालते हैं, और कई बार ये होता है कि हमारे सामने जो आदमी है जिससे बात कर रहे हैं, वो हिंदी में नहीं वो समझ पा रहा है। कोई जैसे फॉरनर है, वो थोड़ी बहुत हिंदी जानता है और अंग्रेजी अच्छी तरह जानता है, तो उसके सामने हम रख सकते हैं। तो ये हिंदी, अब मैं इसके लिए कोई, लेकिन इसको आप हिंदी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। ये जो कहना कि हिंदी स्टैंडर्ड नहीं है या हिंदी के लिए, आप कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको एक तरह से हर फील्ड में उसका प्रयोग। और मैंने कहा कि इससे अगर आप चाहते हैं देश को जोड़ना, और अगर आप चाहते हैं अपनी बात को कम्युनिकेट करना वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपको एक फॉर्म बनाना होगा। और उस ए फॉर्म को अगर आप जैसे फ्रेंच वाले नहीं जानेंगे, मैं स्वीडन गया तो मैंने हिंदी साफ सुथरी बात की, मैं डेनमार्क गया मैंने हिंदी में साफ सुथरी बात की, मैं वहाँ पे जो और देशों में गया, ऑस्ट्रेलिया गया, मैं वहाँ साफ सुथरी में बात की। तो मैंने अंग्रेजी का प्रयोग, क्योंकि बल्कि स्वीडन के अंदर जो है, या वहाँ पर स्वीडिश है, डेनमार्क में डेनिश है, फ्रांस भी गया, तो फ्रांस में भी वहाँ पे मैंने किया। तो या तो मुझे फिर अंग्रेजी मुझे बोलने में बड़ी मुश्किल होती थी, तो वो जहाँ समझते नहीं थे। लेकिन जब मैं, तो इसलिए वहां पर देखा, तो वहां अगर आप वहां पर हिंदी इंग्लिश टाइप बोलेंगे, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके बाद फ्रेंच वाले हैं। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो आप देखिए मॉरिशस हिंदी में फ्रेंच का ज्यादा पुट है, जबकि जो है ज्ञानीज में या हिंदी में या तमिलनाडु हिंदी में या सुरीनामी हिंदी में या फिजी हिंदी में अंग्रेजी का, बल्कि सुरीनाम में डच का प्रयोग ज्यादा है। तो वो डच को लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो हॉलैंड से वो लोग आए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप उसमें जो वहां बोलेंगे, आप सुरीनाम में तो उसमें डच शब्दों डाल करके अपनी एक हिंदी बना दी। तो ऐसी कई वैरायटीज है। तो मैं इसलिए कहता कि ये जो भाषा हम पर डोमिनेट कर रही है, उसका इन्फ्लुएंस होता है हमारे इस शब्द को जोड़ने, इसलिए मैं थोड़ा सा। अब मुझे आ गया है, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर। मैं अब मुझे आ गया है, मैं अब चलूं, मैं जाऊं, हाँ ग्रेट मेरी सर। बात खत्म हो गई, ओके ओके ग्रेट सर। मैं थोड़ी आप, देर बाद फिर आऊं। हाँ, आप जा सकते हैं अब सर, नो प्रॉब्लम। कितनी देर और
5 कितनी मिनट, देर और चलेगा? 5 मिनट और सर। अच्छा, मैं फिर ओके ठीक। हाँ, इस बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आपने जो जो बताया है, वो डोमिनेंट लैंग्वेज जो है, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि हिंदी को लेके मेरे साथ हो सकता है, बहुतों के साथ ऐसा होता होगा कि हिंदी मैं हाथ से तो लिखता था बहुत पहले, लेकिन टाइप करने नहीं आता, क्योंकि यूनिकोड पहले नहीं लॉन्च हुआ था। यूनिकोड 2005 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। उसके बाद फिर हिंदी के साथ कंफर्ट जोन बनाने में थोड़ा टाइम लगा, टाइप करने में। तो ये टेक्निकलिटीज और जो एक समझते, एक तरह से समझिए हैंडीकैप जो हमारे साथ था, वो धीरे धीरे खत्म हुआ है। और नया जनरेशन मेरे ख्याल से बहुत आसानी से टाइप कर लेता है हिंदी को, अंग्रेजी को, क्योंकि वो मोबाइल फोन में भी अब ऑप्शंस आ गए हैं। हम रोमन में लिखते हैं और टाइप हो जाता है हिंदी में। लेकिन ये रोमन में लिख के हिंदी में आउटपुट देने का जो क्रम है, साइकोलॉजिकली एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे माइंड को वो फाइन ट्यून कर रहा है कि भाई आप रोमन में ही बोलिए और रोमन में ही सोचिए। तो मुझे लगता है कि ये भी एक प्रॉब्लम है, जिसपे हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, टेक्निकल पॉइंट जब लेंगे किसी भाषा के बारे में। जी जरूर। लेकिन उससे आज की इस विचार और वक्तव्य और जो हमारा जो डिस्कशन है, उसको बंद करने से पहले मैं स्वागता से कुछ पूछना चाहूंगा, खास के उनका जो बंगाली और हिंदी का जो जो कॉम्बिनेशन है, उसमें उनको कैसे एडजस्ट करती हैं वो, और उसके साथ साथ जो इन्फ्लुएंस है स्पेनिश का भी कुछ कुछ आता होगा। तो वो जान के फिर हम लोग आज की इस टॉक को क्लोज करेंगे। प्लीज स्वागत। सर, मैं वापस उस विषय पे जो मैंने शुरू में एक बार बोला था, उस पे वापस जाना चाहूंगी कि आज के डेट पे कुछ सोशल लिंग्विस्ट ये कह रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग का जो फैकल्टी ऑफ यूजिंग लैंग्वेजेस है, हमारा जो ब्रेन का एक फैकल्टी है, हमारा ब्रेन का एक फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं फॉर स्पीकिंग लैंग्वेजेस, फॉर यूजिंग लैंग्वेजेस। एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक फंक्शन है ब्रेन का, और इस पे बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। तो उस पे यही बात, जैसे आपने जो कहा कि मेरे दिमाग को तुरंत सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, ये सारे वर्ड्स मुझे इंग्लिश में ही याद आए। तो यही बात है कि ट्रांस लैंग्वेजिंग बोलते हैं उसको, कि जब हमारे ब्रेन के पास एक लैंग्वेज का डेटाबेस है, सारे लैंग्वेजेस जितने हमने सीखे हैं, एंड नॉट जस्ट बाय लैंग्वेज, वी कांट जस्ट से कि जिनका ग्रामर है, जिनका वोकैबुलरी है, ऑल आवर जेस्चर्स, ऑल द साउंड्स दैट वी कैन प्रोड्यूस, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दैट रेपर्टोयर, जो हम जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं टू कम्युनिकेट। तो ये नेचुरल है, यही हम ऑटोमेटिकली करेंगे। उसको कंट्रोल करना और उसको ये कहना कि ये लैंग्वेज ठीक नहीं है, ये ऐसे बोलना होता है, इसका ये शब्द है, आपको प्योर लैंग्वेज यूज करनी है, वो उसका हमेशा कोई सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होगा उसको करने का, उसको कंट्रोल करने का। अब वो कंडीशनिंग हम कर सकते हैं बचपन से हम बच्चों को ये कर सकते हैं कि डिस्करेज करे। जैसे मैं बोल रही थी कि माइनॉरिटी लैंग्वेजेस जिनके है, वो लोग अपना लैंग्वेज कंजर्व करने के लिए कोई भी दूसरा लैंग्वेज, बड़ा लैंग्वेज, डोमिनेंट लैंग्वेज को यूज करने से डिस्करेज कर सकते हैं कि नहीं बच्चा, तुम्हें सीखना, तुम तभी अपनी मातृभाषा सीखोगे जब हम तुम्हें डिस्करेज करेंगे फ्रॉम यूजिंग अ बिगर लैंग्वेज। जल्दी से तुम बाहर इंग्लिश बोल रहे हो, कम्युनिटी में हिंदी बोल रहे हो, लेकिन तुम घर में यही लैंग्वेज बोलो, क्योंकि तुम फिर तभी कंजर्व कर पाओगे। तो इसका हमेशा कोई ना कोई सा रीजन होगा टू रेस्ट्रिक्ट any language use in any context। और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमेशा स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रिविलेज है। जिन लोगों के पास अपने मीन्स है, इकोनॉमिक मीन्स है, एक सर्टेन पॉलिटिकल पावर है, वही लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने की शुरुआत करते हैं। और जो भाषा जो बोली जाती है, जो परोल है, जो
the one that people use in their social life, वो कभी भी स्टैंडर्ड नहीं हो सकती, वो अपने आप में वो मिक्स होगी। कोड स्विचिंग, कोड जो सर ने कहा, उसमें हमेशा मिश्रण होगा, उसमें हमेशा इन्फ्लुएंसेस होंगे। जितने कॉन्टैक्ट है उतना वो चेंज होता रहेगा, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है। हर लैंग्वेज, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, हर वक्त चेंज होता जा रहा है, और यही चीज हम यूज कर रहे हैं। और कई सारी लैंग्वेजेस है जो स्टैंडर्डाइज नहीं है, जिनके ग्रामर्स नहीं लिखे गए हैं, जो यूज, तो वो भी लैंग्वेज है, वो कुछ अलग नहीं है, वो डायलॉग है या वो वेरिएशंस है। एक्चुअली जो भी एनीथिंग दैट एनी कम्युनिटी, एनी ग्रुप ऑफ पीपल are using for communication, and they are being able to communicate using it, that has the same value in the, as Dipanita ma'am said, as a functional value of communication, it is serving the same purpose. So these variations also have the same right to exist. But standardization हमें आसानी होती है, वही जैसे हम कैसे लैंग्वेज टेस्ट करेंगे, कैसे हम कहेंगे कि ये इंसान इस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है, अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं होगी। और लैंग्वेज टेस्टिंग क्यों जरूरी है वैसे सिचुएशन में जहाँ कोई कहीं जाके काम करना चाहेगा, कोई कहीं पढ़ाई करना चाहेगा। अगर आप कैनेडियन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करना चाहेंगे, जरूर आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि हाँ, मैं इंग्लिश इतनी आती है कि लेक्चर सुन के समझ लूंगा। तो उसके बिना कैसे होगा? मतलब इट इज ऑलवेज देयर अ सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन behind creating these restrictions, but human beings at the level of communication will always use an impure language. There is no such thing as a pure language when it comes to what people are using for communication. Only in the context of testing or education, some, or nation building, as I said, there will be some reason, or conservation of minority languages, वहां पर ही ये चीजें आती है, प्योरिटी और स्टैंडर्डाइजेशन का सवाल उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागता, आपने जो बातें कही वो बहुत ही ऑथेंटिक हैं और सेंसिबल लग रहा है उसको समझ कि कॉग्निटिव लोड जो है वो हमारे पास हर चीज का होता है दिमाग के अंदर, और ये जो एक इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होता है वो हम ज्यादा कॉन्शियस रिएक्शन करने लगते हैं तो बनावटीपन आ जाता है। तो इसीलिए, लेकिन वही है, अगर हम अपने आप को धीरे धीरे फाइन ट्यून कर रहे हैं, जैसे कि गोस्वामी साहब ने बताया, तो अगर आपकी भाषा में इंटरेस्ट है, पकड़ है, तो उसको हम हावी होने से, डोमिनेंट होने से बचा सकते हैं। तो आज के इस कन्वर्सेशन को, अपने डिबेट को बंद करने से पहले मैं एक बार अपने जो मित्र लोग हैं जो हमें अभी वॉच कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, उन सब से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, नंबर 1। और अगर कोई सवाल हो उनका तो 1-2 सवाल हम ले सकते हैं बिफोर वी क्लोज। फ्रेंड्स, आपके पास अगर कोई सवाल हो तो बताएं। मैं देखता हूँ ऊपर से दीप्तेंदु, आपके पास कुछ नहीं है। दीप्तेंदु, दीपिका, प्रसाद जी, अबू, मारिया डोलोरेस, जयंतकर जी, इशिता, कुमार मुकेश, लक्ष्मण सिंह रावत जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। प्रणवा भारती जी, सृष्टि, ओझा जी, मुझे लगता है कि सारे लोग हैं और सबने अप्रिशिएट किया है आज के इस वक्तव्य को, और सबने बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे गोस्वामी सर के टॉक से। एंड सर्टेनली दीपान्विता जी ने जो अपने फ्रेंच एंगल से, और स्वागता जी ने स्पेनिश और बांग्ला एंगल से जो अपने विचार रखे, एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड इट। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं जो दे रहे हैं वो गोस्वामी सर के लिए है, जिन्होंने बहुत ही अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और ऑथोरिटी के साथ हमें ज्ञान दिया। आज आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। और मैं पैनल के सारे लोगों को अपने तरफ से, मॉडलिंग वर्क टीम के तरफ से, इंडियन ट्रांसलेटर्स एसोसिएशन के तरफ से
विचारक मंच के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। होप टू बी इन टच, और फिर कोई दोबारा कोई टॉपिक लेके आएंगे, आपसे फिर से मुलाकात होगी। और मैं गोस्वामी सर को बधाई देना चाहता हूँ उनके नए डिक्शनरी के लिए, जो अभी कुछ दिन पहले पब्लिश हुई है, जो बहुत ही रिवोल्यूशनरी डिक्शनरी है हमारे लिए, हमारे हिंदी के लिए। और स्टैंडर्डाइज हिंदी, मुझे लगता है कि जैसे जैसे भारत का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर बढ़ेगा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, वैसे वैसे इंटेलेक्चुअल्स और जो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट का फंडिंग होगा, पेट्रोनाइजेशन में होगा। और जैसे अरबिक पर्शियन कभी भारत में पेट्रोनेज लेता था, वैसे हिंदी का भी एक समय आएगा जब हम स्टैंडर्ड हिंदी प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज वो हमारे लिए नीड बन जाएगा। अगर बाहर से लोग काम करने के लिए भारत में आएंगे तो उनकी हिंदी को हम कैसे नापेंगे, कैसे मापदंड रखेंगे? तो जब तक कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं होगा तब तक तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो एक कंपल्सन हो जाएगा मेरे लिए, तो और हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए। तो वो सरकार और इंटेलेक्चुअल्स फिर अपने आप सिनर्जी बनाएंगे और एक साथ जुड़ेंगे और कुछ न कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नमस्कार सबको। नमस्कार सर।